देखिए हमसे बहुत सारी चीज़ें हमने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स में ऐसी देखी और टू सम एक्सटेंट अभी भी हमें अपने कल्चर में अपनी सोसाइटी में नज़र आती है विच आर नॉट नेसेसरीली राइट। Yeah. जितना आप अपने आप को एजुकेट करते हैं, जितना आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं एज अ पर्सन, नेचुरली एज अ पेरेंट भी, एज अ पार्टनर भी, आपको बहुत सारी रियलाइजेशन हो रही होती है कि ये तो हमने अपने घर में नहीं देखा था। Yeah. या और कई दफ़ा उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपने देखा बिल्कुल। होता है। और कितनी सारी हमारी फैमिलीज हैं जो डिसफंक्शनल हैं जस्ट बिकॉज एक रोब वाली पर्सनालिटी, यूजुअली द फादर, Yeah. और बस उनसे सारे डर के रहेंगे, छुप के रहेंगे, बात नहीं होगी। वी डोंट हैव द कल्चर ऑफ हैविंग क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस, वी जस्ट डोंट नो द आर्ट ऑफ हैविंग अ Yeah. डायलॉग, है ना? तो Um, और जब आप पेरेंट बन जाते हैं ऊपर से, तो देन आपका रोल एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। यू वर फर्स्ट फ्रेंड्स, देन यू बिकेम अच्छा हाँ ठीक है हमने लाइफ इकट्ठे गुजारनी है, देन इवेंचुअली यू गेट मैरिड, देन यू आर पेरेंट, फिर वो yeah. बच्चे डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में। तो एवरी स्टेज डिमांड्स अ डिफरेंट यू। एक वो कोई वन साइज फिट ऑल वाला सेम बिल्कुल, तो है नहीं ना। बिल्कुल, सो बिल्कुल। अपनी पेरेंटिंग में भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होना, रियलाइज करना कि व्हाट डजंट वर्क। ज़रूरी नहीं है कि मेरे घर में अगर मेरी वालदा वैसे करती थी या मेरे फादर करते थे तो वो ठीक भी था। इट माइट जस्ट wreak havoc in my child's life. Yeah. I have to realize it. I have to take responsibility कि नहीं, this ends with me. My name is Saba, as you know, and I have been associated with education for quite a lot of years earlier. And later in my career, I shifted gears because training is something that comes naturally to me. I really enjoyed being a trainer while I was training teachers for early childhood education, or later when I moved to criminal justice. So, working with teachers and working with police officers was apparently quite different, but I Obviously. got to learn so many things from both these segments of our society and how challenging it is. It's very easier for me to sit here comfortably and say, ye nahi ho raha, wo nahi ho raha, aur aise Yeah. galat hai, waise galat hai. But when you actually interact with them on a human level, one to one, and get to see and hear how many hardships do they face every single day and not being paid enough for it either. Yeah. So that was quite a realization, and I learned a lot. Okay, so you've talked a lot about a lot of things about working with teachers and then working with Yes. policemen. How is that, and where have you been working with them, like in Pakistan or somewhere else? Luckily, yes, Pakistan. I was trained in US as an early childhood educationist, but most of my work and experiences were in Pindi, Islamabad, and later in Karachi and that part of the country. Or so is for the police colleges, because we used to train, in different police colleges all over the country. So, अच्छा होता है having the best of the both worlds, where you get the education and the experience you need for your field Yeah. from people who have more research, more active learning, hands-on experiences, and then apply them to your situation. Because a lot of things ऐसी होती हैं कि जो हम टीचर्स को भी कह रहे होते थे, अब later in police colleges भी, तो it's very easy for us to say ये यहाँ नहीं हो सकता, ये तो जी बाहर से आई है चीज़, Yeah. और यहाँ पे applicable ही नहीं है, हो ही नहीं सकता. But if there is a will, there are certain ways to cut different corners and get started somewhere. Of course, एक दिन में revolution ना education में आएगा ना policing में आएगा. It's a long, long way. कभी तो But लगता है आएगा ही नहीं. हाँ ये भी है, but we always have to keep the hope up. Yeah. तो मुझे ये बताएं कि working with teachers, हम भी हमारा भी शायद teachers के साथ ही काम है जो what we do at Edopia. चलें, let's start with your journey with Edopia a little bit. Mhm. How has that been? Let's show the audience कि हमने क्या अभी तक कोई मार्का मारा है या नहीं मारा. नहीं काफी बड़ा मार्क है. You should be very proud, both you and Javeria. I have seen Edopia when it was actually being initiated, and it was introduced to be one of my fourth grader. मेरे Facebook पे 400 अगर लोग हैं ना, तो इनमें से कोई 150 मेरे बच्चे हैं, Okay. scattered all over the world, or they're always asking me for love advice, or career में कोई बाहर बैठा हुआ है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, प्लीज मेरे से बात करें. So I love that kind of relationship with my kids. Mashallah, they've all grown up, gone places, become parents and Yeah. all. लेकिन अभी तक वो जो हमारा connection, they were all my fourth graders. Okay. So मजा आता है. So one of my fourth grader, he messaged me that, ma'am,
this is my friend Javeria, and she's opening a kind of school that you will love. You should take your girls to it. And I met Javeria later, a little later after that. Lekin I've seen her, mashallah, grow from strength to strength. And it's not easy. I can understand being a parent and somebody who has some kind of experiences with schools and education. It's, going upstream, being the red salmon is never easy. But you know what? That's why it's called the king of the fish too. That's so true. It's never easy. Lekin the way I have seen Edopia grow, mashallah, the things that they have been doing. And a lot of schools are challenging the norms, which is good to see, know. बहुत सारी चीज़ें जस्ट बिकॉज ट्रेडिशनली होती आई हैं हमारी सोसाइटी में या हमारे कल्चर में डजंट नेसेसरीली मीन कि बस वो कोई हरफ आखिर है या पत्थर पे लकीर है और उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते. देयर इज ऑलवेज रूम टू प्ले, देयर इज ऑलवेज रूम टू डू मोर, आई गेस. एंड Edopia is all about it. They're always pushing the envelope, doing new things, crazy things sometimes, जिसके बारे में पेरेंट्स सबसे पहले परेशान हो जाते हैं, what the hell is going on. लेकिन बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है यार. जो कम्युनिटी स्पिरिट मैंने Edopia में देखी है विद द टीचर्स, मेरे बच्चों की सबसे ज़्यादा दोस्ती अपने टीचर्स के साथ है. दिस इज़ वन थिंग आई कीप टेलिंग Javeria that you should be very proud of. And the teachers, of course, बहुत बड़ा रोल है उनका कि they allow themselves to, bend their backs and come to that level. Yeah, that's so true. And also हमारा I think we didn't even know कि हम कहाँ तक जाएंगे because we were right out of university. और there was this concept जो हम बस सोचते थे कि यार ये करना चाहिए हमें, but we didn't know कि वो जब हम actually, I still remember जो पहले पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स हुई, तो we used to promise so much कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, hands on learning भी होगी और gamify भी करेंगे and all of that. And all of that was good jargons to speak. Good marketing terms, but when वो actual उसको implementation करने में आए तो we couldn't do a lot anyway. But then हमें ये समझ आया कि हल्के हल्के होता है, ठीक है, एक दिन में नहीं होता. And मुझे ये बताएं कि like with Edopia, what's the, apart from being the teachers, मतलब teachers being friends and all of that, what do you think आपके अपने बच्चों में आपको क्या कुछ डिफरेंस अगर नजर आया हो तो वो क्या हो? सबसे बड़ी चीज़ जो कि Edopia में मुझे फील होती है और होनी भी चाहिए, दिस शुड बी एट द हेल्म ऑफ एवरी स्कूल, एवरी पेरेंटिंग, एवरी हाउस होल्ड, कि द चाइल्ड इज़ द सेंट्रल स्टेज. उसके गिर्द आप सारा कुछ बिल्ड कर रहे हैं, उसी के हवाले से सारी एडवांसमेंट हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रही है. कुछ भी आप अपने घर में भी चाहे इंट्रोड्यूस करते हैं, आप अपने स्कूल में कर रहे हैं, अपनी टीचिंग में कर रहे हैं, द चाइल्ड शुड बी योर फोकस. एक वही इंटरैक्टिव ट्रायंगल जिसके हम हमेशा बात करते हैं कि उसमें बच्चा एक रीज़न की वजह से ऊपर है ना, और पेरेंट्स और फैमिलीज एंड स्कूल्स दूसरी साइड पे आते हैं. किसी भी एक आप कॉर्नरस्टोन को निकाल दें, द ट्रायंगल कोलैप्सेस. सो Edopia के मुझे जो अभी हमें एक्सपीरियंस हुआ इसके साथ, we've been unschooling for the last almost 4 years now. और उसमें डिफरेंट अपने सेट ऑफ चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स हैं. बट व्हेन आई Javeria was gracious enough to offer this kind of a hybrid model कि आप बच्चों को यहाँ पे कुछ अर्सा भेजें and let's see how they take back to the learning and the school environment, which was scary for me as a parent because हमने जब बच्चों को निकाला था that was early 2019. कोविड उस वक्त नहीं आया था. कोविड came much later in that year. और हम लोग के लिए इट काइंड ऑफ वर्कड इन आवर फेवर बिकॉज हमारी ट्रांजिशन कोविड से पहले ही ऑलमोस्ट हो गई थी. तो हमारे बच्चे बल्कि फ्रेंड्स कहते थे तुम लोग को पता था कि दिस वाज कमिंग, तुम लोग इतने चालाक थे. हम लोग ने स्कूल्स की फी भी दी, बच्चे भी घर पे खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है, अपनी नौकरी भी एंड ऑल. लेकिन जो स्ट्रगल थी सबसे ज़्यादा अनस्कूलिंग की, होम स्कूलिंग की, वो ये कि इस्लामाबाद बीइंग अ वेरी स्मॉल सिटी, इसमें उस तरह पॉकेट्स ऑफ इंटरेक्शन सोशलाइजिंग की हम लोग को नहीं मिली जैसे हमने सोची थी या प्लान की थी. कि बच्चे हमारे शुरू में आर्ट स्कूल भी जा रहे थे, म्यूजिक स्कूल भी जा रहे थे, दे वर गोइंग फॉर सॉकर, दे वर गोइंग फॉर टेनिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन कोविड केम एंड एवरीथिंग जस्ट केम टू अ स्टैंड स्टिल एंड नेवर रियली उसमें दोबारा हमें उस तरह की मोमेंटम नजर ही नहीं आया. सो दैट पार्ट आई वाज स्ट्रगलिंग. एंड Javeria बिकॉज एक ओपननेस है Edopia में, एवरीवन फील वेलकम कि अच्छा जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके चैलेंजेस है, जस्ट कम ओवर, सी हाउ इट गोज. तो ये फ्रीडम आई गेस कम्युनिटी का या एक
जगह का एक बहुत बड़ी नीश है विच इज़ टोटली डिस्करेज्ड एवरीवेयर, चाहे वो आप बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल्स देख लें, सरकारी स्कूल में तो खैर आप बात ही ना करें, वो तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था ना कि पेरेंट्स का बगैर इजाज़त अंदर आना मना है, मीटिंग भी नहीं ले सकते, सब आप एंटर नहीं हो सकते, मीटिंग तो बड़ी बात की होती है, तो इज्जत दे देंगे ना आपको, तो अंदर ही नहीं आने देते, गेट पे लिखा होता है। सो एज अ ट्रेनर माई सेल्फ, तो हम लोग पहले सबसे ये कहते थे, जो हेड मास्टर्स या हेड मिस्ट्रेसेस होती थी, कि यार ये बोर्ड को तो सबसे पहले उतारते, लेट द फैमिलीज फील वेलकम्ड, एंड कोई किसी के कनपट्टी पे बंदूक नहीं रख रहा। आप अगर उनको स्कूल अच्छा लगेगा वो दाखिल करा लेंगे, अगर आपको लगेगा कि दिस फैमिली डज नॉट अलाइन विद व्हाट वी ऑफर तो नहीं होगा। एडोपिया का सबसे बड़ा आई थिंक जो बेनिफिट है या उसकी जो यूनिक नीश है, वो ये कि everyone feels welcomed, everyone feels part of the community, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से हो, उनकी कोई भी स्ट्रेंथ्स हो, किसी भी जगह पे वो हम सारे लैक करते हैं, एंड दे टेक अलॉन्ग एवरीवन, द एडमिन को आप देख लें, टीचर्स को देख लें, सो मुझे वो चीज़ बहुत कम नज़र आती है स्कूल में। सो यू गाइस हैव रियली डन वंडर्स इन दैट पार्ट कि मेरे बच्चे, अगर मैं खाली अपनी भी बात करूँ ना, स्पीकिंग ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, के 3.5 पौने 4 साल के बाद मेरे बच्चे वापस एक स्कूल एनवायरनमेंट में गए, तो मुझे तो बहुत डर था कि यार दे विल बी लेफ्ट आउट और इनको बहुत प्रॉब्लम होगा और बड़े इश्यूज आएंगे। दे जस्ट टुक इट सो कैजुअली एंड नेचुरली। और जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे बच्चों में मैंने जो चेंज देखी वो ये कि दे वर वेरी अडेप्टिव। जो मेरा छोटा पार्ट है, माया इज स्वीट, वो अपने अब्बा पे गई है, छोटा मेरे पे है, तो सड़ियल, थोड़ी सी, तो उसको बहुत कम लोग पसंद आते हैं, और वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ अ पर्सनल स्पेस, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है ओपन अप करने में। लेकिन द वे शी टुक ऑन टू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, और उसने खूब दिल से अपनी प्रेजेंटेशंस बनाई भी, और रिसर्च हो रही है और सब कुछ हो रहा है, तो दैट वाज अ वेरी गुड चेंज, दैट वाज द पार्ट दैट वी वर मिसिंग, and Edopia just very naturally, बड़ी organically उसने उस गैप को फिल कर दिया। Okay. So, मुझे ये बताएं कि क्या आपको ऐसी सूझी कि आपने अपने बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला इन 2019? वैसे तो एक लिहाज से तो अच्छा ही हो गया, कोविड में आपको उसका सफर नहीं करना पड़ा, बट व्हाई डिड यू चूज टू अनस्कूल? देखिए, एक तो मेरा अपना जो बैकग्राउंड था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, सो आई न्यू व्हाट शुड बी, और पार्टली शायद वो इतना ज़्यादा मेरे फेवर में काम भी नहीं किया, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ हार्ट एक, एंड हैव बिन द जेडेड पेरेंट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और बड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी और मीटिंग्स भी और सब कुछ भी, व्हेन आई यूज्ड टू वॉक इन द स्कूल, द एडमिन वाज टेक अबाउट, गॉड ये फिर आ गए, मैडम आ गई, मैडम। यस, आई हर्ड दैट थिंग अबाउट माय सेल्फ, कि हम तो बड़ा डरते थे आपसे, मैंने कहा यार आई डोंट नो, मैडम आ गई ना, कि यार ये फिर आ गए, ऐसे वाले पेरेंट्स आई गेस हर जगह होते हैं, तो मुझे कोई, आई हैव नो एज accepting that I've been there, done that, not proud of it, but that was part of my journey and learning. So schools का जैसे आप भी जाते हो हमजा, के it's never easy, आप कोई भी स्कूल खोलते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो दे स्टार्ट एज अ पैशनेट प्रोजेक्ट, राइट, पर्सनल किसी का शौक है, ग्रोथ है, और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने अपने जर्नी में एडोपिया के साथ देखा कि देयर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, देयर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, बहुत जगह पे आपके हाथ पांव बंद जाते हैं, वेदर यू वांट इट और नॉट, नोबडी लाइक्स इट, लेकिन आपको करना पड़ता है। सो मेरा बहुत हार्ट एक था कि जैसे हम करना चाह रहे हैं, जिस तरह की एजुकेशन में हम बिलीव करते हैं, एंड वी आर फॉलोइंग इट लाइक अ पाइड पाइपर, माई किड्स वर गोइंग टू IB वर्ल्ड स्कूल, लेकिन IB इज स्टिल मोस्ट ब्यूटिफुल, आई थिंक, कॉन्सेप्ट, अगर उसको उस तरह पढ़ाया जाए, यस, ऑन पेपर इट्स ब्यूटिफुल, और कहीं नहीं कहता IB कि जी किताबें नहीं है, जैसे हमने पाकिस्तान में देखा कि उसको एक एक्सक्यूज बना लिया गया कि जी किताबें नहीं है, तो बस जिसका जो दिल करेगा स्कूल वो उसको उस तरह पढ़ा रहा है। IB फ्रेमवर्क देता है, लेकिन साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है कि द स्कूल्स हैव टू डेवलप देयर ओन करिकुलम अकॉर्डिंग टू देयर ओन कल्चरल एंड रीजनल नीड्स। सो वो जब नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि यार बजाय इसके कि कांस्टेंट एक नेगेटिविटी है, कांस्टेंट एक स्ट्रगल है, लेट्स टेक अ स्टेप बैक, और लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज एज पेरेंट्स, बिकॉज इट्स ईजी टू से कि जी स्कूल ये नहीं कर रहे, टीचर्स नहीं अच्छे, छोड़ के चली जाती हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बच्चा स्कूल में एक 7 घंटे के लिए जा रहा है,
बाकी टाइम पे वो मेरे पास घर बिल्कुल, में है ना, तो बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा किसकी है? बिल्कुल, मेरी। बिल्कुल। As a parent, we have to realize it, whether we like it or not. It's easy to blame, others or point fingers. Lekin by the end of the day, it's the family, it's the parents who are most responsible, and they should be. So that was the decision. That was the hardest for Isam and I. हमने शादी का इतनी जल्दी फैसला इतनी सोच समझ के नहीं किया था जितना बच्चों को निकालने का किया था. Trust Yeah. me. Lot of debates and lot of pros and cons. लिस्टें बनाई हमने बैठ के कि अच्छा ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो वो होगा, उसका क्या करें. तो अपनी तरफ से बड़े चारों कोने दबा के, एंड वी जस्ट वांटेड टू टेक अ गैप ईयर ऑफ सॉर्ट्स Okay. कि देखते हैं कि हम बच्चों की कैसे मदद करें. देन कोविड हैपेंड इवेंचुअली, तो वो तो सबके लिए स्कूल बंद हो हाँ, गए. तो इट वाज यू नो काइंड ऑफ अ कैलकुलेटेड मूव, लेकिन देयर वाज अ लॉट ऑफ रूम फॉर ट्रायल एंड एरर. बहुत सारी चीज़ें दे वर्कड इन आवर फेवर, बहुत सारी चीज़ें दे जस्ट डिडंट, लाइक सोशलाइजिंग, कि हम आपको मैं पहले बता रही थी कि हमें पॉकेट्स ढूंढने में बहुत मुश्किल आई. कि वी ट्राइड स्टडी सर्कल्स, वी ट्राइड लर्निंग पॉड्स, वी ट्राइड बुक क्लब्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो हमसे हो सकता था कोविड में, क्योंकि वैसे किसी को घर बुलाते हुए हाँ, बहुत वो मसला था, पेरेंट्स भी बहुत मसले, मसला। और हमारा खुद भी कि यार वी आर रिस्पॉन्सिबल, बच्चे हमारे पास आ रहे. बट वी ट्राइड एज मेनी थिंग्स एज वी कुड. सो अच्छी उसकी बात ये रही अनस्कूलिंग की कि द फ्रीडम दैट इट गिव बोथ आवर चिल्ड्रन एंड द पीपल दैट दे आर बिकमिंग. Maya took on to animation. Inaya is fiercely involved into costume designing and God knows what. अच्छा, सारा nice. उसकी इंसानों से इतनी दोस्ती नहीं जितनी हॉट ग्लू गन से. Okay, या okay. तो सारा दिन एक हमारा चल रहा होता है बैक एंड फोर्थ, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए. मैं कहती हूँ एक दफ़ा लिस्ट बना लो एंड देन वी गो एंड गेट द स्टफ. Yeah. लेकिन द फ्रीडम and the time that they had, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करते. They are following their curriculum according to their grades. और एडोपिया में वो interaction के लिए project based learning भी कर रहे हैं, electives भी ले रहे हैं. So they have a very nice hybrid model going on for them for now. Maya will be starting her high school very soon, inshallah next week से. Yeah. So Inaya अभी मौज मेले में अभी चल रहे हैं 5th graders के. तो मैंने कहा चलो अभी तो- आपके पास टाइम है. तो मुझे ये बताएं कि as a having children at home for such a long time, चले कोविड तो सबके लिए हो गया, लेकिन उसमें भी वो एक झांसा सा था कि अच्छा ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं ऑल ऑफ दैट, जो कि असल में इतनी वैल्यू इम्पार्ट नहीं करती हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए. ग्रेड 4th एंड अबव इट वाज स्टिल नॉट द फुल स्कूल एक्सपीरियंस, बट लेकिन मुझे ये बताएं कि जब बिल्कुल शुरू में आपने शुरू किया अनस्कूलिंग अपना करना, ये वो, हाउ डिड यू स्केड्यूल देयर डे, हाउ डिड द किड्स टेक इट, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी होता होगा कि जी हमारे दोस्त यार उधर रह गए, फलाना हो गया, स्कूल एक पूरा एनवायरनमेंट होता है. सो हाउ वाज दैट इन द बिगिनिंग? हमने देखे, मैं और इसाम बोथ आर द काइंड ऑफ पीपल हु लाइक टू प्लान. Yeah. राइट, मतलब ज़ाहिर स्पॉन्टेनिटी का अपना एक मार्जिन है, लेकिन वी मोस्टली ट्राई टू प्लान थिंग्स आउट. तो जब हम ये डिसीजन ले रहे थे कि शुड वी और शुड वी नॉट पुल आउट द किड्स, तो उसमें हमने ये चीज़ें सारी डिस्कस की थी. इसाम वाज वेरी उसको बहुत था कि देखो तुम पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा बिकॉज आई विल बी आउट Yeah. टू वर्क. Yeah. सो तुम देख लो, बाद में चीखे ना मारना, या बाद में ना सर ना पीट रहा होना, या Yeah, मेरे पे yeah. ना जो है इसका आएगा. सो आई न्यू व्हाट वी वर वॉकिंग इनटू, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें सरप्राइजेस भी थे. प्लान हमने इस तरह किया था अपनी तरफ से, कि बच्चों का, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो बैकलैश आती है अनस्कूलिंग पे या होम स्कूलिंग पे, ये कि बच्चे सोशली बड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनका इंटरेक्शन अपने एज फेलो से ख़त्म हो जाता है. वी सॉ एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ इट, because we were lucky enough to have that kind of planning initially before COVID, कि बच्चे स्कूल में आप जब जाते हैं तो सारा साल बच्चे के 4 या 5 दोस्त होते हैं, बाकी क्लास फेलो से ठीक है, बिल्कुल. हंसी मजाक और दोस्ती वाली सलाम होती दुआ है, होती है सिर्फ. सलाम दुआ हाँ, होती है. yeah. As my little one says कि she doesn't want to invite anyone home, still she says कि I greet them, so this should be good enough. तो मैंने कहा wow यार, they are so इतनी honored इज्जत मैं यार उनको कि दे you रही greet them. हूँ. So उसका फ़ायदा हम लोग को इस तरह हुआ कि बच्चों की जो इंटरेक्शन थी वो बजाय एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ किड्स से, वो बड़ी डाइवर्स सर्कल्स में गई. जैसे आर्ट स्कूल में वहाँ जहाँ पे जाते थे, उधर हाउसवाइफ्स भी आ रही हैं, उधर एक डॉक्टर भी आ रही थी, और स्टूडेंट्स भी थे, आर्ट स्टूडेंट भी थे, फिर ये होम स्कूलर्स का एक अलग बच्चों का भी ग्रुप बीच में बन गया. तो ऑल काइंड्स ऑफ एजेस एंड एक्सपीरियंसेस एंड बैकग्राउंड्स वर टुगेदर इन अ पर्टिकुलर क्लास. और उससे जो बच्चों का लर्निंग कर्व हमने अपने दोनों बच्चों में देखा कि दे वर मोर ओपन, दे वर मोर क्यूरियस, एंड दे वर मोर एक्सेप्टिंग Accepting. या Yeah. कि वो हर चीज़ को बड़े आराम से ले लेते थे कि
ओके, बजाय इसके कि एकदम से बैक Yeah. फुट पे जाए कि ये क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है, स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, या आर्ट स्कूल में वो तो Yeah. ज़ाहिर है वो बाहर करते थे Yeah. बेचारे, बट दैट वाज समथिंग दैट माय Yeah. किड्स वर नॉट एक्सपोज टू, घर Yeah. में नहीं करता कोई भी। सो फायदा उसका ये हुआ कि आई थिंक दे वर फार मोर सोशली अवेयर एंड कल्चर्ड एज जैसे रिजर्वेशन आती है कि जी बच्चे तो बड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं और उनको फिर इंटरेक्शंस में बड़ा मसला आता है। उसके नुकसान भी हुए हमें काफ़ी ज़्यादा कि अ लॉट ऑफ द बर्डन केम ऑन टू जस्ट आवरसेल्व्स, लाइक हमारे पास पे ब्लेम करने के लिए कोई और नहीं था ना, क्रिप Yeah. करने के लिए नहीं था। Yeah. सो अपनी तरफ से माय एक्सपीरियंस केम इन हैंडी ऑफ बीइंग इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में कि आई हैड access to some of the most wonderful curriculums, and we kept it very open कि देखेंगे यार किस चीज़ पे बच्चा अच्छा रिसीव कर रहा है, कौन सी चीज़ पे हमें लग रहा है कि दिस इज़ वर्किंग बेटर। और क्योंकि दोनों बच्चे इतने डिफरेंट है पर्सनैलिटीज़ में, जो चीज़ माया को पसंद है अनाया को बिल्कुल भी नहीं है, जो अनाया की स्ट्रेंथ है माया वाज लाइक मैं। तो इट वाज क्वाइट अ स्ट्रगल, लेकिन the freedom, like I said, to pick and choose what you think is working better for your one child or the other, that was really mind blowing. So what's the एक तो दो चीजें, दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि how has parenting sort of evolved? I know it's evolved a lot since we were young or whatever, but um, अब की क्या demands हैं when it comes to parenting, and what is being a prototype parent? Yeah, this is one of my favorite term, prototype parent, and the work that goes into that Yeah. is Tremendous. tremendous, Yeah. tremendous. Back जैसे कहते हैं ना, आपकी पूरी रह जाती है उसमें। बट देखिए, हमसा बहुत सारी चीज़ें हमने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स में ऐसी देखी, और टू सम एक्सटेंट अभी भी हमें अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में नज़र आती है, विच आर नॉट नेसेसरीली राइट। Yeah. जितना आप अपने आप को एजुकेट करते हैं, जितना आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं एज अ पर्सन, नेचुरली एज अ पेरेंट भी, एज अ पार्टनर भी, आपको बहुत सारी रियलाइजेशन हो रही होती है कि ये तो हमने अपने घर में नहीं देखा था, Yeah. या और कई दफ़ा उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपने देखा बिल्कुल। होता है। और कितनी सारी हमारी फैमिलीज हैं जो डिसफंक्शनल हैं, जस्ट बिकॉज एक रोब वाली पर्सनालिटी, यूजुअली द फादर, Yeah. और बस उनसे सारे डर के रहेंगे, छुप के रहेंगे, बात नहीं होगी। वी डोंट हैव द कल्चर ऑफ हैविंग क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस, वी जस्ट डोंट नो द आर्ट ऑफ हैविंग अ Yeah. डायलॉग, है ना? तो Um, और जब आप पेरेंट बन जाते हैं ऊपर से, तो देन आपका रोल एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। यू वर फर्स्ट फ्रेंड्स, देन यू बिकेम कि अच्छा हाँ ठीक है, हमने लाइफ इकट्ठे गुजारनी है, देन इवेंचुअली यू गेट मैरिड, देन यू आर पेरेंट, फिर वो yeah. बच्चे डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में। तो एवरी स्टेज डिमांड्स अ डिफरेंट यू। एक वो कोई वन साइज फिट ऑल वाला सेम बिल्कुल, तो है नहीं ना। बिल्कुल, सो बिल्कुल। अपनी पेरेंटिंग में भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होना, रियलाइज करना कि व्हाट डजंट वर्क। ज़रूरी नहीं है कि मेरे घर में अगर मेरी वालदा वैसे करती थी या मेरे फादर करते थे तो वो ठीक भी था। इट माइट जस्ट रेक हैवॉक इन माय चाइल्ड्स लाइफ। Yeah. आई हैव टू रियलाइज इट, आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, आई दिस एंड्स विद मी। मैं जस्ट, और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई टुक रिफ्यूज बिहाइंड माई फादर्स डीएनए, कि वो क्योंकि बड़े पर्टिकुलर होते थे चीज़ों में, एंड ही वाज वेरी प्रिंसिपल्ड, और वो बड़े पंक्चुअल थे। घड़ी के गुलाम मैं भी हूँ, लेकिन नाउ आई हैव लर्नड हाउ टू लेट गो ऑफ Yeah. सर्टेन थिंग्स विच I know are not in favor of my kids. It Yeah. will eventually, bring resentments for my girls against me as a parent, and it will just create more and more of a distance between them and me. That is something I never wanted. So I had to sit down and give myself one hard look that Saba, this needs to change. I know I have lived my life with this, but this is not good for my kids. So being the prototype parent is realizing and accepting with all your heart. इसका ये मतलब नहीं है कि हम पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं। They knew what they knew and they tried to do the best, Yeah. to At that their time, for abilities. those उस era के Yes, हिसाब से absolutely, उसमें, absolutely. It was not very easy. हम तो अब हमारे पास ना वो excuse नहीं है, yeah. because of so much information. बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं और आप अब ये कह नहीं सकते, ओ हमें तो पता ही नहीं था कि ये टॉक्सिक हाँ। ट्रेट होती है। हमारे पे तो being school owners भी जो है ना, वो एक like हमें बड़ी कभी कभार तब अंदर की बात है obviously, लेकिन बड़ी बार हमें होता है कि what if Jaza doesn't turn out to be
a great child or whatever, Yeah. and हम क्या कहेंगे कि हमने एडोपिया तो खोल लिया है लेकिन अपना देखो बच्चा नहीं पढ़ाना सामा सबसे गया. वो कहते हैं ना एवरीवन नोज हाउ टू रेज अ चाइल्ड बट द पेरेंट्स, Yeah, है ना, तो सबको yeah, पता होता है, बस yeah, पेरेंट्स ही को नहीं पता होता, सो yeah. इट्स ओके, सॉरी. तो मुझे ये बताएं कि your your journey as a parent, it seems that इसमें से बहुत सारी evolution हुई है, बहुत सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट अपॉन किया गया है, उनमें से जो थोड़ी चीज़ें annoying थी या जो चीज़ें आपको like you didn't want to see those same things in your children, उनको आपने you've tackled with them or tried to change them. That requires a lot of strength. It does. So I'm sure it's not everyone's cup of tea to do this. Like बहुत मुश्किल काम है. Like आपके जैसा आपने टाइम की बात की. Like so my father has glorified this story. Story थोड़ी गमीन है लेकिन I was just like मेरे जो दादा के अबू थे उधर से चल रहा है. सही है. तो he was in the British Army, British post rather. So one day he was asked to deliver a post in some गांव, ठीक है. And by the time he was coming back, तो वो रात हो गई थी, तो हमने कहा यार कुछ डिकेट चाहिए तुम्हें, तो why don't you stay over and go in the morning when there is light. So he went the other day. अगले दिन वो गए, तो he reported back to the British post and they were like, you're suspended without pay for two months. And वो according to my दादा कहत आ गया था घर में. There was no money and बहुत बुरे हाल थे. तो उस चीज को he was like कि टाइम पे जो है ना आना बहुत important, and that transferred into my father and then so on. अब वो मेरे अंदर भी है, और I feel a lot of anxiety when I'm not on time and all of that, but I also feel कि मैं जब इनके देख रहा होता हूँ तो इतनी लोगों को पाकिस्तान में especially it's so hard to tell them. मुझे अगर कोई कहते यार 3 बजे मैंने आने से आपका वो है, तो I will start working from 2 p.m. के यार let's do this and that. मुझे ये बताएं कि where do you find this strength to tackle whatever your intrinsic toxic traits or non-toxic traits are? How do you find that? देखिए अगेन इफ यू आर विलिंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ और ऑल ऑफ अस आर वर्क इन प्रोग्रेस. हम में से कभी भी कोई नहीं कह सकता कि जी दिस इज द टाइम एंड डेट कि मैं सुपरमैन बन जाऊंगा या सुपर वुमन बन जाऊंगी, और ऐसा कुछ नहीं होगा. सो इट्स सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस. इस डिल्यूजन से निकलें कि सब ठीक है, सब परफेक्ट है, जो जैसे चल रहा है चलने दें. जब आप में वो एक्सेप्टेंस आ जाती है कि आई नीड टू चेंज और दिस नीड्स टू चेंज अराउंड मी, तो स्टार्ट्स फ्रॉम होम, राइट. बजाय इसके कि मैं वेट करूं कि जी को मसीहा आएगा और पाकिस्तान ठीक हो जाएगा और और कुछ होगा और वन फाइन डे आई विल वेक अप एंड आई विल बी द बेटर पर्सन. आई थिंक हमने वो इमरान खान के साथ ट्राई करके देख लिया है. वो हमने बहुत सारे लोगों के साथ ट्राई करके देखा है, हमसा कितने लोगों के साथ, और वो तब तक होती रहेगी डिसअपॉइंटमेंट जब तक हम एज ए नेशन चेंज नहीं होंगे. मसाया सिंड्रोम इज वेरी इजी कि आप किसी पे अपनी सारी होप स्पिन कर लें कि बस ये आएंगे और जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब ठीक हो जाएगा. कहीं पे भी नहीं होता ऐसे. कौन सी दुनिया, राइट. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट Essam and I constantly try, and we have been very honest with this personal struggle of ours with our children, and we have regular family meetings. अभी न्यू ईयर आ रहा था तो हम सारे बैठे कि अच्छा चलो रेजोल्यूशन बनाते हैं. एक कोई पर्सनल आपकी जो डेवलपमेंट की कोई चीज़ है जो आप सीखना चाहोगे, एक आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से होनी चाहिए, और एक हमारे बिकॉज ऑल ऑफ अस आर इंट्रोवर्ट्स बेसिकली, सो हम क्या एक अपने आप को चैलेंज देंगे इन ए सोशल सेटिंग. सो दिस इज वी कीप ऑन ट्राइंग थिंग्स क्योंकि फ्रीडम है और ओपन कम्युनिकेशन है. माई चिल्ड्रन आर फुली अलाउड टू यूज एज मैनी डिफरेंट वर्ड्स दैट दे, लेकिन उनको मैं यही कहती हूँ कि दिस फ्रीडम एंड्स विद दिस लाउंज. Because after this when you cross that limit or cross that boundary and you meet with the rest of the family, that's completely on you and their comfort with those kind of words. मैं तो accept कर लूंगी कि मुझे पता आपने किस context में कहा है. Other person, उनकी और आपकी bonding एक different है. So it's a lot of work, lot of introspection that goes in, and it's not easy. It's not easy. It's not easy to accept that I am the toxic person. I am the problem here. And unfortunately मेरे घर में मैं ज़्यादा problem हूँ because I was the disciplinarian. I was the Hitler who always going around time पे खाना है, time पे सोना है, time पे ये करना है, time पे वो करना है, the helicopter one. So ज़्यादा चेंजिंग मुझे अपने अंदर लेके आनी पड़ी, and I keep telling my children, मुझे फील होता है कि entire DNA had to change. कि एक
हेलीकॉप्टर पेरेंट से एक चिल रिलैक्स पेरेंट के अच्छा बच्चे ने गन बिठा दिया अपने कमरे में, अच्छा वो अभी 11 बज गए नहीं उठा, खाना नहीं खाया, Yeah. मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि जब बच्चे ने खाना ना खाया हो। अब मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है भूख लगेगी तो खा लेगा। Hmm. सो इट्स लॉट ऑफ वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड ऑफ कोर्स इट्स नेवर ईजी, और आप उसमें 100% कामयाब भी नहीं होते। पार्ट ऑफ मी इज स्टिल हु आई वाज Obviously. 14 and 15 years ago, but I keep that Saba in check now. जहाँ पे वो ज्यादा थोड़ी सी वो हिटलर वाले सॉर्ट में आती है, तो आई जस्ट पैट हर डाउन, सो Calm जा down. सो जा Calm सो जा सो जा। down. कुछ नहीं होता, कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा। बिकॉज जब हमने अनस्कूलिंग भी शुरू की थी ना, तो माई हस्बैंड स्टिल इज, गॉड ब्लेस हिम, वेरी चिल रिलैक्स काइंड ऑफ अ पर्सन, कंप्लीटली ऑपोजिट। लेकिन उसको कहते हैं कुछ नहीं होता यार, बच्चों को इनकी जो लाइफ है ना वो है स्किल बेस्ड, डिग्री बेस्ड, जैसी मेरी और तुम्हारी थी वो इनकी नहीं खत्म है। हो गया। आई वॉज हेल बेंट कि नहीं नहीं इनकी एक्रेडिशन का क्या होगा, और ये इनकी बाद में यूनिवर्सिटी एडमिशन्स का क्या होगा। सो आई वॉज कॉन्स्टेंटली गोइंग थ्रू स्टाफ, और वो अपने सारे कोने दबाने वाला सीन ना, तो बहुत मुश्किल उसमें होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप खुद को चेंज कर रहे होते हैं, मुझे भी इसमें काफ़ी टाइम लगा, और हो जाता है। इट्स हो नॉट जाता है। ईजी, बट कांस्टेंट स्ट्रगल, कांस्टेंट अपने आप को reassurance. Consistency, like Yes, most things in life, yes. basically. It's just like a अगर gym. Yeah. एक दिन में रिजल्ट नहीं आना, Yeah, yeah. लगे रहें। अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास भी ऑब्वियसली एक पेरेंट बॉडी है, ऑब्वियसली को बहुत अच्छा सैंपल साइज नहीं है, लेकिन गिवन के बहुत प्रिविलेज्ड हैं सारे, owing to our fee obviously, but we see a lot of dysfunctional parents, dysfunctional families, maybe sometimes it's because of क्या नाम है, घर के हालात इस तरह के होते हैं, ससुराल के इश्यूज, ऑल ऑफ दैट, समटाइम्स इट्स जस्ट टू वेरी डिफरेंट पीपल हु आर लिविंग टुगेदर। अब वो हैं, अब बच्चे भी आ गए बीच में, इट्स नॉट इजी टू जस्ट सॉर्ट ऑफ लेट गो थिंग्स। सो especially when children are added into the equation, the test becomes so much more harder, because now you're not only responsible for the two of yourself, या मतलब आप और आपके husband or whatever, but you're also responsible for two children who whatever you do they're copying, right? And whatever you क्या नाम है, आप जो values उनमें inculcate करेंगे वही वो दुनिया में आगे लेके जाएंगे। कैसे हम ये fix करें the toxicity that is existing in families, or in like, और वही toxicity बच्चों में भी आगे pass on हो रही है? What could be like a checklist, or like top 3 things that you've seen in your relationship or in your family unit that really worked for you? Honest and frank communications, that is the only जिसे कहते हैं ना हमारी सेविंग ग्रेस, मेन चीज। आप कोई रिलेशनशिप उठा के देख लें, व्हेन आई टॉक अबाउट ईसा एंड आई, दैट वी आर पोल्स अपार्ट इन पर्सनालिटीज, कंप्लीट ऑपोजिट्स, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स लिविंग इन। और हमारा अभी तक यही सीन है कि हमें फील ही नहीं होता कि अच्छा हमारी शादी भी हुई भी और 2 बच्चे भी हैं, और अब बच्चे भी माशाल्लाह यार कमिंग टू दैट एज कि दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स टू अस, कि इतनी ओपन किस्म की हम लोगों की बातचीत हो रही होती है कि कजन्स वगैरह आते हैं तो दे आर लाइक इतनी तो हमारी भी नहीं है। मतलब इन्होंने बहुत ही ज्यादा फ्री किया हुआ है। yeah. लेकिन ऑफ कोर्स विद दैट फ्रीडम आल्सो कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? कि बच्चे अगर चॉइसेस हमने बच्चों को दी हैं तो उन चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने उनको सिखानी है ना, कि आप ये करोगे तो ऐसा होगा, एंड ये नहीं होगा कि आप हाथ झाड़ के खड़े हो जाए कि मुझे क्या पता था ऐसा होगा। सो कॉन्शियस डिसीजन है। तो ओनली थिंग मुझे जो फील होती है हमारे कल्चर में बहुत कम है, इज टॉकिंग अबाउट आवर इश्यूज। हर किसी को है, हर रिलेशनशिप में है, हर घर में है, हर पर्सनालिटी में है। हमें एक डिनाइल के एक जिसे कहते हैं ना, वो एक हमारे एक एपिडेमिक की तरह वो फैली हुई है, बिल्कुल, बहुत कि ज़्यादा। हम बात ही नहीं करना चाहते उस पर। या मेंटल हेल्थ है, आप उसको देख लें, कोई घर के इश्यूज हैं, जैसे आप बात करो डिसफंक्शनल फैमिलीज की, वो और मेरा ख्याल है 80 to 90% हमारी बहुत फैमिलीज ज़्यादा, डिसफंक्शनल हैं, बहुत वेदर ज़्यादा। वी वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। लेकिन अगर आप थोड़ी सी ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ लें, थोड़ी सी अगर आप देखें इन चीज़ों को, तो हमें बहुत सारे पैटर्न्स नज़र आते हैं इन चीज़ों के, और हम खुद कर रहे हैं। वी आर गिल्टी ऑफ डूइंग इट द सेम, रिपीटिंग द पैटर्न। वही हम इसीलिए प्रोटोटाइप पेरेंट की बात कर रहे थे कि रियलाइजिंग वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, और उसके फिर कितने नेगेटिव रिपरकशन हमें अपने साथ अपनी लाइफ में नजर आए। कि जैसे मैंने हमेशा अपने गुस्से का या अपने बहुत प्रिंसिपल्ड होने का एक शील्ड ही रखी, बिकॉज माई फादर वाज लाइक दैट, आई एम बॉर्न टू बी दिस, बट नो, आई कुड चेंज। मैंने ये देखा कि माई फादर बहुत गुस्से वाले थे तो उनके फिर दोस्त भी नहीं थे,
बहुत कम थे, बहुत लोग उनसे घबराते थे, उनसे डरते थे, हम डरते थे भाई, अब्बा आते थे तो सलाम करके छुप जाते थे कि बस इससे ज़्यादा फ्रैंकनेस ब्लैक नहीं एंड है। व्हाइट होता सब हाँ, कुछ। बिल्कुल, कोई बात होती थी तो वो अम्मी के थ्रू जा रही है, या सो दिस इज़ वेरी कॉमन इन द होम्स दैट यू एंड आई वर रेज़्ड इन। लेकिन दुःख होता है कि अगर वो चीज़ें अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हो, कि जिस तरह मैं बच्चों के रिलेशनशिप देखती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, कि वो उतनी डिस्टेंट हैं। पेरेंट्स अक्सर जाके स्कूल में एक बात है, हमें तो पता ही नहीं था। This is something that shocks me and या scares me to the wits out of me कि कैसे हो सकता है कि एक पेरेंट को पता ही ना हो यार, हाउ डिस्टेंट आर यू लिविंग अंडर द सेम रूफ, और कितना मुश्किल है बच्चे को आपसे बात करना, दैट इज स्कैरी एक्चुअली। हमें डरना चाहिए बीइंग या पेरेंट्स इस चीज़ पे। सो ये एक कम्युनिकेशन, वही एक अकलौता टूल है हमारे पास कि आप एक ऑनेस्ट एंड फेयर कम्युनिकेशन अगर अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं, अपने ससुराल वालों के साथ कर रहे हैं। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड आई विश आई हैड द पेशेंस एंड द विजडम of what I have now 15 years earlier. मेरे रिलेशनशिप बहुत बेहतर होते, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। मज़ा आता है, अब स्पेस देते हैं भी एक दूसरे को, लेकिन डिसएग्रीमेंट्स हर जगह होते हैं, कोई रिलेशनशिप भी परफेक्ट नहीं है ना? obviously सो एक चीज़ जो बचा जाती है रिश्तों को और आपके बॉन्ड्स को, वो ये कि जब आप अपनी गलती खुले दिल से मान लें और एक कांस्टेंट स्ट्रगल अगला बंदा आप में देखे कि हाँ यार, ही और शी इज़ ट्राइंग टू बिकम बेटर एट दिस। वो टाइम लगेगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लेकिन हो जाता है। अगर आप वही परसिस्टेंस और आप कोशिश में लगे रहें तो वो हो जाता है। आई डू एन्जॉय द रिलेशनशिप विद माय इन-लॉज़ बिकॉज़ आई हैव बीन लिविंग विद देम फॉर द लास्ट 15 इयर्स। या और अब जो मेरा उनका साथ रिलेशनशिप है वो बहुत मज़े का है। और लोग कहते हैं कि आप 3 बहुएँ एक घर में रहते हैं, लड़ाइयाँ नहीं होती। मैंने कहा नहीं, लड़ाइयाँ नहीं होती, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। एंड obviously वी टॉक अबाउट इट कि अगर आप सॉल्यूशन बेस्ड अपनी थिंकिंग को कर लें ना, इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड, कि ये प्रॉब्लम है और ये ऐसे है और या वो ऐसे, वो तो हर घर में है भाई। या आपको अपने सगे भाई के साथ भी प्रॉब्लम है, या आपको अपने पेरेंट के साथ भी प्रॉब्लम होता है, बट हाउ डू यू रिजॉल्व इट? थ्रू कम्युनिकेशन। अच्छा, अब कम्युनिकेशन इज वेरी इजी, easier said than done. हमारे यहाँ तो I've seen so many households जिसके अंदर like आप सरफेस पे ना सब कुछ फिट है। वो 90s की मूवियाँ नहीं होती थी, हम साथ साथ आठ हाँ, हैं और वो सारा घराना and all of that, but you scratch the surface and you see so many problems and so many unresolved issues, and उनके ऊपर कोई बात करना चाहते ही नहीं। और अगर आप बात करो तो वो वही ना, वो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमें हमें आता ही नहीं है बात करना, या ना हमें कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना आता है, ना हमें होता है कि यार अच्छा अगर डिसएग्रीमेंट हो गया तो उसको आगे लेके कैसे चलना है। इट जस्ट बिकम्स अ बॉक्सिंग मैच कि मैंने इस बंदे को हराना है अपने किसी किसी कॉन्वर्सेशन से या अपनी किसी बात से, एंड इट जस्ट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट कि वो जितनी ज़्यादा वो बाउट्स ऑफ एंगर और बाउट्स ऑफ क्या नाम है स्क्रीमिंग मैचेस होते हैं, उतनी ही आपके डिस्टेंसेस बढ़ना शुरू होते हैं। देन हम उसके बाद होता है कि अच्छा हम एक घर में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट there is nothing in between us. So I really hope people do reflect on this in some way or possible, but it's a very hard struggle, and I give a lot of kudos to you for at least saying कि यार मैंने at least अपनी जिंदगी पे reflect किया, and then I worked on it, and like 15 years later, 10 years later, you're a much better person just for yourself and for your family as well, but more so for yourself. So kudos to that. मुझे ये बताएं कि what would be your advice to, मैं एक नया पेरेंट हूँ, 1.5 साल की बच्ची आपने अभी देखी है थोड़ी देर पहले, what would be your advice to a new parent or someone who wants to start being a parent? What should we do? बहुत चैलेंजिंग है वैसे मेरे लिए तो अभी तक, लेकिन हाँ, what should we do? जितनी किताबें मेरा ख्याल है हम सब पढ़ते हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग से Yeah, लेके जो yeah, होली ग्रेल ऑफ yeah, पेरेंटिंग, और उसके बाद फिर हाउ टू रेज अ हैप्पी चाइल्ड एंड ऑल दैट, मैंने भी बड़ी पढ़ी थी, yeah, बट आई थिंक बीइंग मोर अट्यून टू योर चाइल्ड एज अ पेरेंट, और हम बहुत कम क्रेडिट देते हैं इस चीज़ को कि आपकी गट फीलिंग एज अ पेरेंट बिल्कुल ठीक होती है। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, कि जब आप एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक सेट ऑफ पेरेंट्स भी पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू बिकम अ न्यू पर्सन yeah, ऑल दिस yeah, एकदम से। सो उनको स्पेस देना,
उनको वो रिस्पेक्ट देना, बीइंग द न्यू पेरेंट, वो हमारी सोसाइटी और कल्चर का काम है। Yeah. बहुत सारी चीज़ें टॉप डाउन आ रही होती हैं हमारी माओं की तरफ से, दादियों की, नानियों की हमने तो तरफ ये से। किया था। हाँ, हमने तो बच्चे ऐसे पाले थे, तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और ये Yeah, yeah. वो वही ग्लोरिफिकेशन, Yeah. एवरी फेज हैज इट्स ओन चैलेंज। कभी किसी भी दौर में बच्चे पालना आसान नहीं रहा, ये बात। It doesn't get easier. No, Thank you so much. yes, I'm sorry to break it to you, Hamza, लेकिन no, आपके set of challenges different होते जाएंगे. The good news is कि you'll always be up for a new challenge. Yeah. है ना? ये जो अभी है वो 5 साल वाली उम्र में नहीं होगा, जो 5 साल वाली में है वो 10 साल वाले में नहीं होगा, फिर आगे comes the teenage and there's a big storm coming. I'm bracing that, so I can share my experience. लेकिन आई गेस पेरेंट्स को थोड़ा सा एक एजुकेट अपने आप को करना चाहिए फॉर दिस न्यू रोल, और आई विश कोई किसी किस्म का कोई टेस्ट हो, बिकॉज नॉट एवरी पर्सन इज फिट टू बिकम अ पेरेंट। बिल्कुल, ये मेरी जो से भी बात होती है, मेरे पाकिस्तानियों को तो स्पेशली कोई टेस्ट चले थे, उसके बाद कोई कुंडा चाबी खुले तो कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। बिकॉज देखिए, एक बच्चा पैदा हो जाता है, फाइन, लेकिन are we really ready for that kind of responsibility? Yeah. Most of us are not, to be honest. To be honest, a child happens, and then we're like, oh God, on the job training what the hell, अब क्या होगा? And then you learn on job, जैसे आप कह रहे हो ना, कि वो साथ साथ आप भी सीख रहे होते हैं। लेकिन the more we educate ourselves, और अच्छी बात है कि अब बच्चियां और बच्चे इस चीज को एक कॉन्शियस डिसीजन के तौर पर लेते हैं when they want to start a family after certain years of their marriage, which is great, क्योंकि आप पहले खुद तो एक नए रोल में एडजस्ट हो जाएं। एडजस्ट आपको टाइम ही नहीं मिलता, और बम्बार्टमेंट आप पे नए रोल्स की हो जाती है, तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग haywire. So education first, working on yourself, working on your strength, talking about it. आप पहले से निकाहनामा आपका इजाजत दे रहा है यार, खुदा का वास्ता है कि जो शराइत लिखनी है लिखो, लिखो कि आपने शादी के बाद काम करना है, आपने बच्चे कितने पैदा करने हैं, कब करने हैं, क्या होगा उनका। हमारा दीन इज ब्यूटिफुल, एंड आपकी लॉस को सपोर्ट करती है। सो वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स मोर ऑन दीज लाइन्स कि यार आप एक नए डिसीजन में अगर घुस रहे हैं, या आप एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्तर पे ले रहे हैं, are you really prepared for it? Are you the fit or perfect cut to be a parent? और अगर नहीं है, how do I become one? वो क्लासेस होनी चाहिए वैसे, मेरा ख्याल है यार, मेरा बड़ा दिल करता है यार कि पेरेंटिंग क्लासेस, जिस तरह प्रीनेटल क्लासेस होती हैं, तो पेरेंटिंग की भी होनी चाहिए, सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए। इट्स नॉट इजी। अब मैं देखती हूँ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है हमारे, तो उसमें पेरेंट्स आर जस्ट रिपिंग देयर हेयर कि यार बच्चे बात नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा। तो व्हाट वेंट रॉन्ग? टीनेज तो अब आई है ना, 14-15 साल के बाद, उससे पहले हम कहाँ थे? Why didn't we work on the things that were supposed to be worked upon? So वो gaps जो हमारी कल्चर में है, हमारे अपने नॉर्म्स में है, वी नीड टू रियलाइज कि यार ये नहीं काम करते। अच्छे हैं बहुत, क्योंकि ट्रेडिशन से चलते आ रहे हैं, जनरेशन से चलते आ रहे हैं, हमारे अब्बा ने ऐसे किया था, हमारी वालदा ऐसे करती थी, बट नॉट नेसेसरीली कि वो आपके लिए भी उतने ही वर्केबल हो। और शायद इस दौर में और इस एरा में, और मतलब ऑब्वियसली यू शुड चैलेंज कल्चर एज मच एज पॉसिबल एज वेल, क्योंकि वो तो हिस्टोरिकली आ रहे, आजकल तो 5 साल में दुनिया बदल रही है। इट्स क्रेजी हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग एज वेल, एंड वी नीड टू आल्सो टेक चार्ज ऑफ इट। अच्छा, बच्चों की तो बहुत बात होगी, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस। मुझे बताएं, व्हाट लाइफ बियॉन्ड किड्स, हाउ डू यू बैलेंस, like I'm sure you must have some social commitments as well, you must have some own personal health goals, so on and so forth. Read भी करना होता है बंदे ने, कोई वीडियो भी देखनी होती है, कोई एंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है। How do you balance that? बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऑटोनॉमी, अगर हम बच्चों के स्कूल्स की हम बात कर रहे थे, तो वो आपके अपने लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है, एंड द चाइल्ड replicates what he or she sees in their household early on and later in school, फिर workplace and all. So बहुत ज़रूरी है कि वो ऑटोनॉमी जो आप अपने बच्चे में लाना चाह रहे हैं, या एक सेल्फ इमेज आप उसको बताते हैं, और अपनी सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, तो वो बच्चा खुद आपको भी देते देख रहा है अपने लिए, कि वो ऑटोनॉमी वो आपकी भी देखता है कि माई मॉम इज दिस trainer or who works and trains people, and she has her own book club, she goes to the gym, and she has a group of friends, or friends may be for different circles. And this is one thing we always teach our kids too, कि
अपनी जो एक्सपेक्टेशन है फ्रेंड्स से उसको थोड़ा चैलेंज करो. एक ही दोस्त में आपको सारा कुछ नहीं कभी भी मिलेगा. नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू फाइंड ग्रुप्स ऑफ, अच्छा आपको एक ग्रुप को जो है रीडिंग पसंद है, उनके साथ आपका एक अलग ग्रुप बन गया. एक ग्रुप को म्यूजिक पसंद है, उनका अलग बन गया. गेमिंग वाले अलग आ गए, आउटडोर स्पोर्ट्स वाले डिफरेंट आ गए. एंड यू कीप ऑन इंटरैक्टिंग विद देम. इट not only gives you enriched experiences, you get to learn so much. Yeah. So वो बहुत ज़रूरी है. It's also हमारे यहाँ it's also not putting all of your eggs in one basket as well. ना no, क्योंकि not वहाँ at एक all. दोस्त वो आपका चला गया, मूव कर गया, हाँ, you're फिर gone. वो फिर आप डिप्रेशन में हाँ चले गए, फिर आप माय sad हो बेस्ट गए. फ्रेंड वेंट वे, Yeah. वो दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गया. सो लाइफ गोज ऑन. Yeah. जिंदगी वक्त की अच्छी बात ये है कि दोनों आगे की तरफ Yeah, चलते हैं, yeah. मूव फॉरवर्ड. सो वही हमारी भी साइकी होनी चाहिए ना, कि यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड अहेड. आगे देख के चलें. पीछे ऑफ कोर्स बहुत अच्छा था जो कुछ था, बट था हिस्ट्री. एवरी लिविंग मोमेंट इज बिकमिंग हिस्ट्री एज वी Yeah. स्पीक. सो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी अपनी जो सेल्फ वर्थ है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई कम्युनिकेटेड टू माई हस्बैंड, ही नोज एंड ही रिस्पेक्ट्स इट अ लॉट. सो डू माई किड्स. और एग्जैक्टली वही चीज़ पर हम अपने बच्चों के लिए भी रखते हैं. अब मेरी जो छोटी बेटी है, लाइक आई टोल्ड यू कि शी इज़ फियर्सली इंडिपेंडेंट. अपना खाना खुद बनाना है. शी इज़ 10. और जहाँ अगर उसने नहीं जाना तो वो हमें भी इनकार कर देती है कि नो आई डोंट वांट टू गो. सो वी रिस्पेक्ट दैट. Yeah. कि यार ठीक है, इस शी हैज़ हर ओन पर्सनैलिटी, शी हैज़ हर ओन कंफर्ट लेवल. और हमने कभी किसी भी चीज़ पे अपने दोनों बच्चों को फोर्स नहीं किया. हालांकि उसके लिए फिर हमें बैकलैश भी बड़ा सुनने को बिल्कुल, मिलता था कि बिल्कुल. अरे अनोखे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये और वो. लेकिन respect, respect of the person, respect of the individuality is so important. और बच्चे अल्लाह का गिफ्ट है, नो डाउट. लेकिन आपकी अपनी पर्सनल लाइफ उनके आने से ख़त्म नहीं हो जाती. आपका अपना एक जो पर्सनालिटी है या आपके अपने शौक हैं, वो ख़त्म नहीं होने चाहिए. क्योंकि बच्चे तो डिफरेंट फेज से निकल के अपनी लाइफ पे चल Yeah, पड़ेंगे ना. और yeah. ये भी हमारे कल्चर में बड़ी टॉक्सिक चीज़ है कि मैं ये उम्मीद लगाऊं कि जी मेरे बच्चे मुझे बुढ़ापे का बुढ़ापे का सहारा सहारा. होंगे और ये होगा. नो, दे आर डेस्टिन्ड टू लीव. आई शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डे वन कि मैंने इनको बस एक अच्छा इंसान बनाना है अगर बन गए. और उसके बाद दे आर फ्री टू गो. और आई हैव टू वरी अबाउट कि अच्छा मेरे बुढ़ापे में मैंने क्या करना है. हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, हाउ डू आई टेक केयर इफ आई गेट सिक एंड ऑल दैट. वो मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ना दे आर बाउंड बाय दीन, नॉर लॉ, Yeah, नॉर एनी बिल्कुल. अदर. अपनी अपनी खुशी से कोई कर दे तो कर दे, वो एक वो अलग देखिए, वो बात उनकी है. अच्छाई होती है. Yeah. मैं नहीं कहती कि हमारे कल्चर की ये बुरी चीज़ है कि फैमिली कल्चर एंड फैमिली बॉन्ड्स एंड यूनिट्स आर स्टिल वेरी स्ट्रांग. इट्स समथिंग दैट वी ऑल चेरिश. Yes, yes. लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो टॉक्सिक एक उसमें रिलेशनशिप में अपने आप को बाउंड फील करे कि मैं तो जाना चाहता हूँ लेकिन मैं जा नहीं सकता क्योंकि अम्मी का क्या होगा, क्योंकि अब्बू का Yeah. क्या होगा. पेरेंट्स हर किसी को बहुत प्यारे होते हैं. जैसे बच्चों के लिए दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं. तो आई एम श्योर अगर लड़कों के पेरेंट्स की ये ख्वाहिश है कि जी बेटे उनके साथ रहें, तो क्या लड़कियों के पेरेंट्स नहीं हैं? बिल्कुल, उनका दिल बिल्कुल, नहीं करता कि वो भी अपने बिल्कुल. पेरेंट्स के साथ रहे. तो एक बैलेंस शुड बी देयर. बिल्कुल. हमारे केस में तो even a lot of Edopia's parents are the sort of people who went abroad, फिर for whatever reason अकलौते थे या जो भी situation थी, they had to come back. And वो जो उन्होंने जो भी sacrifices किए हैं उनको पता होंगे. लेकिन I think लड़कों पे स्पेशली इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर. ठीक है, और आप ना कुछ कर ही नहीं सकते. लाइक आप यू फील सो पैरालाइज्ड कि you're always thinking about कि यार अच्छा सही है, फिर मैं इस्लामाबाद ही रह सकता हूँ, सही है, और मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ. और गिवन कि आजकल इकोनॉमी के जो हालात हैं या वैसे भी जॉब्स के जो हालात पाकिस्तान में हमेशा से हैं, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू इवन बी अ ब्रेड विनर एज वेल. कि यार अब आप शेयर भी नहीं बदल सकते. आपका स्किल हो सकता है जर्मनी में बहुत फिट हो, या जैसे इंजीनियर्स की यहाँ पे बहुत बुरी हालत है, बट दे आर वेरी गुड इन व्हेन यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, व्हेन यू गो टू अदर कंट्रीज. बट देन दे मेक दैट डिसीजन कि यार अम्मी अब्बू का क्या होगा. बिल्कुल. एंड और अम्मी अब्बू भी शिफ्ट नहीं करना चाहते. देर ऑल्सो लाइक यार मेरा यहाँ Comfort गाँव level. है, हाँ, मेरा यहाँ पे सब कुछ है, मैं नहीं जा रहा, Yeah. तुम आओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है. Yeah. Which just creates a lot of frustration in people, and then that is taken out on perhaps the relationship or perhaps other places, and just a cycle that keeps continuing. So I really hope कि वो करें. Saba, anything that I missed out, anything that you would want to talk about, maybe something about मेरा तो ये question था, वैसे मैं पूछ भी लेता हूँ, like how was it working with police of Pakistan, like training them, क्या scene था, what did you see, क्या आपको नजर आता है? Is it only because of lack of finances कि वो इस तरह के हैं, या is it just हमारा culture ही इस तरह का है? What do you think?
देखें, पुलिस की अगर आप बात करते हैं, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन फर्स्ट। इट्स वेरी ईजी, मेरा भी जब तक उनसे वास्ता नहीं पड़ा था ना ट्रेनिंग्स में, तो गालियां देना या बहुत आसान है। बहुत आसान है कि आप फंसे हुए हैं यार वीआईपी रूट में और उसके ऊपर टा टा कर रहे हैं Yeah. एमपी के ऊपर के खोल दे भाई। लेकिन वंस यू टॉक टू देम ऑन अ ह्यूमन लेवल, वंस यू इंटरैक्ट, वंस यू स्पेंड अ डे इन देयर लाइव्स, आप उनसे स्टोरीज, और हॉरर स्टोरीज Oof. हैं, हॉरर स्टोरीज हैं। आई टेल यू हमजा के लिटरली उस वक्त फिर एहसास होता है कि हाउ मच should have been done in these 75 years in so many fields, जो pretty basic है। Yeah. मैं ये भी नहीं कह रही कि जी अब बाहर से वो FBI एजेंट्स आके पढ़ा रहे हैं उनको और Yeah. फलाना आ रहा है और ढींगना आ रहा है, लेकिन हम अपने उन पे कुछ बेसिक सिस्टम्स हर जगह बना सकते थे, चाहे वो एजुकेशन का होता है, चाहे वो हेल्थ केयर का होता है, चाहे वो सर्विसेज का है। सो मैंने जो चीज़ फील की कि primarily पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। I love my people, and I have the greatest bias for Pakistan. बाहर से मैं खुद पाकिस्तान की बुराइयां जितनी मर्जी कर लूँ, मेरे सामने कोई आके बाहर से कहे ना ओह पाकिस्तान ऐसा है, तो हाँ, मेरी लिटरली हाँ, बहुत साथ हाँ. हीटेड डिबेट हो जाती है उनके साथ, बिकॉज देयर इज नो परफेक्ट कंट्री एनीवेयर। हर कंट्री के अपने सेट ऑफ इश्यूज हैं, पाकिस्तान के भी हैं। मसला सिर्फ ये है कि बहैसियत कौम हम मेहनत करने से बहुत घबराते हैं। आप किसी को देख लें, काम आप किसी को कह के देखें, और जब तक आप एक एग्रेसिव फॉलो अप नहीं करेंगे उस पे, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, Yeah. कांस्टेंट, यू हैव टू हाउंड अ पर्सन लिटरली टू गेट दैट थिंग डन, Yeah. अनलेस वो आपने फिर आखिर में थका के आप कहते हैं दवा करो मैं खुद ही कर लूँ। हाँ, यही हाँ. होता है। Yeah. ठीक है, टाइम का भी यही है कि वी डोंट टेक इट एज अ कमोडिटी। हम उसको चिल सीन में, अच्छा 5 बजे का बुलावा है, 7 बजे जाएंगे। हाँ. हमारे अब्बा हमें 5 बजे वहां पे खड़ा कर Oof, देते थे और oof. होस्ट भी नहीं होता था, और हम कहते थे क्यों लेके शादियाँ, आते हैं आप yeah. शादियों पे। शुरू में स्कूल कॉलेजेस के लिए जब ट्रैवल करना होता था, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, तो माय फादर ट्रेंड अस के घर से कितने बजे निकलोगे, वो रास्ता कितनी देर का है, उसको काउंट करो, बस कितनी देर के बाद फ्रीक्वेंटली आती है, लेट भी हो सकती है, वो काउंट करो, देन द टाइम दैट द बस विल टेक यू टू Half an डेस्टिनेशन। hour पहले पहुँचो. हाँ, इफ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट। Yeah, या yeah. हम तो उस तरह बड़े हुए हैं ना। सो पुलिस में भी मैंने जब चैलेंजेस उनके देखे, कितनी लो सैलरीज हैं, देयर इज हार्डली एनी सिस्टम, कोई ट्रेनिंग नहीं है उन पे, कोई उनके लिए इंसेंटिव नहीं है, तो फिर उन्होंने फिर रिश्वत नहीं लेनी है ना हर Yeah, जगह पे, yeah. कि जब उनका एक बेसिक राइट है। अब अभी भी मैं देखती हूँ कि जो बेसिक मिनिमम वेज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उससे भी बहुत नीचे लोग काम कर रहे हैं। तो this is exploitation then you can't blame the professional to go this way And or also that. give you like security and put their own lives on the risk as well Yes, for you. या जो भी yes. मतलब आप उनको मतलब अच्छा पे तो करें, ये तो कोई उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि वो आई डिड अ पॉडकास्ट विद द पुलिस ऑफिसर एज वेल, और वो उसका भी ये था कि यार तुम लोग ये नहीं समझते शायद कि कितने सारे लोग हैं और कितनी सी पुलिस है, बहुत सही है, कम। और तुम लोग की हमारे से एक्सपेक्टेशन हर वक्त ये होती है कि और you guys only come to us when there's a distress, so you're when we see you, you're already hyper, you're already top of your anxiety, कुछ चोरी होगी, कुछ डकैती होगी, किसी ने मार दिया, किसी ने ये, किसी ने वो, कोई बच्चा अबडक्ट हो गया, you're not in your senses, right? You're not like तुम मेरे पास आके कोई रैशनल पॉडकास्ट करने क्या नहीं बात आ कर रहे रहे हैं, ठीक है, या तुम जो हो, तुम मेरे पास आ रहे हो अपनी मसला लेके, so you're always whatever I will say, और मैं चुटकी में तो नहीं वो बंदा पकड़ के लेके आ सकते, it's going to take some time, लेकिन हमें वो नहीं दी जाती। सेम गोज फॉर डॉक्टर्स एज वेल, व्हेन वी गो टू अ डॉक्टर वी आर ऑलरेडी इन डिस्ट्रेस, ठीक है, कि सर जी फिक्स करें हमें, फिक्स अभी मी, अभी या अभी करना अभी अभी, एंड अगर वो नहीं होता है या होता है या व्हाटएवर, नोबडी गिव्स यू अ थैंक यू कार्ड, नोबडी सेज कि यार सर जी आपकी वजह से कुछ हुआ था, इन दोनों केसेस में। एंड वो ये भी कहते हैं इतनी थैंकलेस है कि तुमने, कहते हैं कि मुझे कहते हैं कि यार तुमने कितनी दफा किसी पुलिस वाले को जाके थैंक यू बोला है कि यार फॉर कीपिंग इट सेफ, जो तुमने इतने दिन बगैर डकैती गुजारे हैं, जो इतने दिन बगैर उसके गुजारे हैं, फिर उसका क्रेडिट दे दो। So that really opened my eyes, यार, I never यस। look at the world that way. So आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं? देखिए, जब तक हम अपनी ओवरऑल अप्रोच को प्रोएक्टिव नहीं बनाएंगे ना, तो कभी भी हालात ठीक नहीं हो सकते। किसी आप डिपार्टमेंट के देख लें, किसी फील्ड के देख लें, जिसके भी देख लें, हमें मसला आने से पहले सोचना है कि ये प्रॉब्लम पोटेंशियल है और ये आएगा। आएंगे। हम पेरेंटिंग की बात कर लें, हम स्कूलिंग की बात कर लें, आप पुलिस वर्क की बात कर लें, तो जब तक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ हम नहीं चीज़ों को लेके चलते और अपने सिस्टम्स की कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करें ना, ट्रेनिंग 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 बाय द एंड ऑफ द डे, कि कोई
पैदा नहीं हो जाता वैसे, Yeah. किसी प्रोफेशन के लिए. इट्स कॉन्स्टेंट वर्क. सो जाहिर है कोई किसी ने पुलिस ज्वाइन कर ली, किसी ने कोई स्कूल ज्वाइन कर लिया एज अ टीचर और वट एवर कैपेसिटी. They have to be trained, they have to be facilitated, they have to be supported to become better and better at what they do. उनकी अपनी भी ज़ाहिर है इसमें विल है और अगर वो चाहते हैं अपने आप को बेहतर करना, लेकिन हाउ द सिस्टम, हाउ द सोसाइटी वर्क्स, और वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऊपर से आना, टॉप डाउन या एरियल रूट लेके आना उनके ऊपर बहुत आसान है, चाहे डॉक्टर्स के ऊपर आप खड़े होकर चीख रहे हो या पुलिस वाले के ऊपर चीख रहे हो. लेकिन व्हाट आर वी डूइंग एज अ सोसाइटी? हम क्या अपनी नेबरहुड पेट्रोल करते हैं? मुझे और बिल्कुल. आपको कोई है, हम तो जान बचाएंगे कि यार बिल्कुल. मैं पागल हाँ, हूँ, मेरे मेरे पास पास ये टाइम नहीं काम रह है. गया. हाँ. तो दैट इज द इशू कि हम वी आर नॉट विलिंग टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल. और वो जब तक ऐसा होगा और हम लोग नहीं करेंगे तो हम इसी रट में फंसे रहेंगे. Yeah. Saba, thank you so much. I think we already talked 1 hour. Yes. So it was a great conversation. मैं तो खुद बड़ा कुछ सीखा है. So Thank if there's anything that I've missed out about your life or whatever you wanted to talk about, the mic is yours. Thank you so much, Hamza, for having me over. It's always fun, to talk about things. Yeah. That is something that I always tell my children, Kate, talk about it. Talk about how you're feeling. The choice of word has to be careful. जैसे भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन talk about how you feel. Talk about how this affects you and the other person as well. क्योंकि जब तक आप खाली मैं और मैं, I, my, me, mine वाली situation में रहेंगे तो नहीं, we are a nation, we are a family, we are, a community living together in one space which has issues, which has pros and cons Yeah. like any other. So we have to work together. We have to talk about our things. We have to learn from each other. और हम अपने बच्चों से बहुत सीखते हैं. My kids are my best teachers, my favorite ones too. But yeah. सीधा मुंह पे कह देते होंगे कि आप गलत कह रही हैं. वो कहते हैं मेरे बच्चे, मेरे छोटा वाला तो सीधा पटाश मुंह पे मारता है ना. और वो पहले तो शुरू में तो बड़ी लगी जोर की, लेकिन बट देन व्हेन आई एक्सेप्टेड कि हाँ यार इसको ये फ्रीडम मैंने देना है, कि she should be able to feel कि मैं अपनी माँ को कह सकती हूँ कि I didn't like when you said that. Yeah. It didn't sit well with me. So choice of words has to be kind and thoughtful, but otherwise वो कहेंगे तो उनके इश्यूज रिजॉल्व होंगे और उनको अपने फ्यूचर रिलेशनशिप बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. That's my job as a parent. Thank you so much. Thank you.